If you have seen in the last class, I told you that whenever you try to do something which is against some other force, you have to do some work. I told you that there is a positively charged rod and you are trying to bring a positive charge near that positively charged rod. So you have to put an extra effort. You have to apply an external force in order to bring this positive charge near this positively charged rod. Because obviously, anything which is positive in nature is going to repel it, and you have to do some extra effort, some extra work done is to be done in order to bring that particular positive charge near it, and that work that is being done is stored in the form of potential energy of that charge. That work done is always stored in the form of potential energy. Okay, so we have done basically two things yesterday. The first one was electric potential energy difference. It means that suppose you are having a positively charged rod and the electric field is like this, and there are 2 points A and B, and you want to bring a charge from A to B, then how much work you have to do in moving a charge from A to B is actually the electric potential energy difference. And the second thing that we had done yesterday was only potential energy. When we don't talk about potential energy difference and we talk only about potential energy, we take one point at infinity. मीन्स वहाँ पे जो पॉइंट आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में ए लिया हुआ था, जो पॉइंट आपने इस पॉजिटिवली चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड में ए और बी लिया हुआ था, अब आप ये पॉइंट ए को कहाँ ले लेंगे, इन्फिनिटी पे, और आप इन्फिनिटी से एक चार्ज को कहाँ पे लेकर आएंगे, एट पॉइंट बी विच इज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड. So this is the potential energy of a charge. Now बच्चे, what is the unit of potential energy? एनर्जी है तो ऑब्वियसली द यूनिट्स आर गोइंग टू बी जूल्स. यूनिट्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो एनर्जी और वर्क डन के यूनिट्स होते हैं वही पोटेंशियल एनर्जी के भी होते हैं. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? Electrostatic potential is the work done per unit charge in bringing a charge from infinity to that point against the electrostatic force. आप देख रहे हो, आपके पास एक पॉइंट इन्फिनिटी पर है और आपके पास एक पॉइंट जो है वो किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, और आप उस चार्ज को पॉइंट ए से कहाँ लेकर आ रहे हो, पॉइंट बी पे लेकर आ रहे हो. तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, आप इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं टू दैट पॉइंट, जहाँ पे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ. देखो, फिर से हम दो बच्चे लेते हैं, जैसे सपोज हम लेते हैं मुस्कान को ले लेते हैं और बलदेव को ले लेते हैं इस बार. ठीक है, अब मैंने सपोज मुस्कान को बोला, मुस्कान ये एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, यहाँ पे एक पॉइंट बी है जो इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड से 4 सेंटीमीटर दूर है, और मैंने बलदेव को बोला, बलदेव ये एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड है और यहाँ पे एक पॉइंट बी है जो इससे 6 सेंटीमीटर दूर है. इन दोनों पॉइंट्स का आप दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल के दो मुझे. तो मुस्कान कहेगी ठीक है मैम, मैं क्या करती हूँ, एक चार्ज को इन्फिनिटी पे कंसिडर कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा उस चार्ज को इस पॉइंट बी तक लाने के लिए, वो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा. और सेम चीज़ बोली मुझे बलदेव ने कि मैम इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक लाने में मुझे जितना काम करना पड़ेगा वो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा. लेकिन बाद में मुझे मुस्कान ने कहा कि मैम मुझे ना ज़्यादा एफर्ट लगा इसको बी पॉइंट तक लाने में, और बलदेव ने कहा कि नहीं मैम मैं तो बड़े आराम से ले आई इसको बी पॉइंट तक. क्यों? क्योंकि मुस्कान का जो पॉइंट था वो नियर था, it was nearer to this positively charged rod, and जो बलदेव का point था it was away from this positively charged, or little away from the positively charged rod. So it was easier for you know it was easier for Baldev to get it to this point, and it was difficult for Muskan to get through this point. So this is your electrostatic potential, and it can be explained in other manner also. I told you, suppose there are two kids who are not good friends of
each other. Now I give you a task. एक बच्चे को मैंने टास्क दिया कि ये जो बच्चा A और ये जो बच्चा B है, इनको आप दो डिफरेंट सीट्स पे बिठाओ लेकिन साथ साथ, ठीक है। और मैंने दूसरे बच्चे को टास्क दिया कि ये जो बच्चा A है और ये जो बच्चा B है, इनको आप एक ही सीट पे बिठाओ साथ साथ। तो कहाँ आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी? जब आपको उनको एक ही बेंच पे साथ साथ बिठाना पड़ेगा, तो यू विल फील मोर प्रॉब्लम, बिकॉज आपको इसको कन्विंस करना पड़ेगा, आपको इसको भी कन्विंस करना पड़ेगा कि नहीं, बी वाले को आप बोलोगे नहीं तो ए के साथ जाके बैठ, क्योंकि ये दोनों फ्रेंड्स नहीं है। तो दिस इज व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. So it is work done per unit charge. What is electrostatic potential? It is work done per unit charge. अब हम इसकी छोटी सी एक डेरिवेशन देखते हैं जो बहुत इजी है. देखो, सपोज करो आपके पास एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू. उस सोर्स चार्ज से एक पॉइंट ए जो है वो डिस्टेंस आर पर है, ठीक है. अब मैंने कंसिडर कर लिया कि एक चार्ज जो है उसको मैं इन्फिनिटी से लेकर आ रही हूँ इस सोर्स चार्ज के पास, ठीक है. सिचुएशन ये है कि आपके पास एक सोर्स चार्ज है जिसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, उससे एक पॉइंट ए है जिस पे मैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहती हूँ, जिस पे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहती हूँ बिकॉज ऑफ दिस सोर्स चार्ज. और एक चार्ज जो है वो मेरा कहाँ पर है? मेरा जो चार्ज है वो कहाँ पर है? मेरा चार्ज है इन्फिनिटी पे. एक चार्ज जो है मेरा वो कहाँ पर है? वो इन्फिनिटी पर है. अब इन्फिनिटी से सपोज करो मैं उसको कहाँ लेकर आ रही हूँ? पॉइंट बी पे, ठीक है. अब पॉइंट बी पे उसने एक छोटा सा डिस्टेंस ट्रैवल किया dx. अब पॉइंट बी पे जब मैं उसको एक छोटा सा डिस्टेंस dx ट्रैवल कराती हूँ तो मुझे एक छोटा सा वर्क डन करना पड़ता है. वो जो वर्क डन है उसके फोर्स की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है और मेरा खुद का चार्ज भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है. आई एक्सप्लेन यू अगेन. अ चार्ज केम फ्रॉम infinity to point A. We have to find electric potential at point A. At point B, we consider a small element dx. अब small amount of work done क्या होगा? F vector dot dx vector. जब आप इसको ओपन करेंगे, तो ये हो जाएगा एफ डी एक्स कॉस थीटा. यहाँ पे थीटा कितना होगा? 180. क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट करा रहे हो ज़बरदस्ती, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. फोर्स की डायरेक्शन यहाँ है, वो तो चार्ज को रिपेल करना चाहता है, लेकिन आप ज़बरदस्ती चार्ज को उसके पास लेकर आ रहे हो. तो एफ और डी एक्स के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री. जब आप इसको यहाँ पे पुट करोगे एफ डी एक्स कॉस 180, तो कॉस 180 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? -1 होती है. तो आपके पास जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा वो हो जाएगा -एफ डी एक्स हो जाएगा. अब एफ को आप और क्या पुट कर सकते हो? आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. तो आप फोर्स को और क्या पुट कर सकते हो? E इंटू क्यू नॉट पुट कर सकते हो. अब पोटेंशियल क्या होता है आपके पास? पोटेंशियल जो होता है, अभी अभी मैंने आपको सिखाया, क्योंकि आप छोटे से वर्क डन की बात कर रहे हो तो अभी आप छोटे से पोटेंशियल की बात करोगे. अब dv क्या होता है? वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज. अब dw हमने क्या निकाला है? ई क्यू नॉट डी एक्स अपॉन क्यू नॉट. तो ये हमारे पास क्या हो गया? यहाँ पे कैंसिल हो गया. तो डी वी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? -e/dx. सो ये आपका आया फर्स्ट, एक फॉर्मूला आया, ठीक है. अब ये जो स्मॉल पोटेंशियल निकला आपका, आप इसको टोटल पोटेंशियल में कैसे कन्वर्ट करोगे? बाय व्हाट? बाय इंटीग्रेटिंग इट. अब आपको पता है कि E क्या होता है? E होता है KQ/R². यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया हुआ है x. ये जो B पॉइंट है ये कहाँ पर है?
x पर है, ठीक है। तो जब आप इसमें पुट करेंगे के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, और आप इसको क्या करने की कोशिश करेंगे, इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, तो आपको टोटल पोटेंशियल मिल जाएगा, जिसको भी आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो अब आप नेक्स्ट पेज पे देखिए, हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि E की वैल्यू क्या होती है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर होती है। तो डी वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। जब आप टोटल इंटीग्रेशन से इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको पता है आप कहाँ से कहाँ आ रहे हैं, आप इन्फिनिटी से लेके आर तक आ रहे हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/x² dx फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। अब आपको इसका इंटीग्रेशन पता है, 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x। ऑलरेडी वहां पे एक माइनस का साइन था, तो माइनस के साइन ने माइनस के साइन को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। अब जब आप इसकी लिमिट्स पुट करोगे तो 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी आपके पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो होगी सिर्फ के क्यू अपॉन आर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें आपको डायरेक्शन के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता कि इसमें डायरेक्शन क्या होगी, क्या क्या होगा। सो द फॉर्मूला बिकम्स v इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर।